हमने सुना कि परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा रखता है, We have heard what desire God has for और us. हमने सुना हर संडे आकर हम वचन सुनते हैं, And we heard that every Sunday when we come here and hear God's word. लेकिन क्या हम वो अपने जीवन में चाहते हैं? But the thing is, do we desire that in our life? देखो, परमेश्वर जब इजरायली को चला रहा था, When God was leading the people of Israel, लेकिन परमेश्वर ने दो लोगों को अलग रीति से उनके साथ बर्ताव किया है। and God dealt with two people in two different ways. देखो वहाँ पर भजन संहिता 103 में देखते हैं, In Psalms 103, वहाँ पर मूसा था there was Moses, और दूसरी तरफ इजरायली थे। and on the other hand, there were the people दोनों of परमेश्वर के Israel. पीछे चल रहे थे। They both were following God. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ध्यान से सुनो, And brothers and sisters, please listen carefully. यहाँ पर मूसा था, On one side there was Moses, इजरायली, and the other side there were the people दोनों of Israel. परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। Both were walking behind हमारे God. कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, Even in our church, there are many people like that. सब लोग आए हैं यहाँ पर, Everyone has come here. लेकिन हम कौन से कैटेगरी में गिरते वो इम्पोर्टेंट है। But it is important to know that which category देखो we भजन belong. संहिता 103 के 7 में क्या लिखा है? In Psalm 103 verse 1 to 7, what it says, उसने अपनी गति मूसा पर प्रकट किया और इजराइलियों पर अपना काम प्रकट किया। He made known his ways to Moses and his acts to the children of Israel. देखो मोसेस को उसने अपना वेश दिखाया, So he showed his ways to Moses. लेकिन इजराइलियों को वेश नहीं दिखाया। But the people of Israel he didn't show. उनको क्या दिखाया? What did he show to the people काम of Israel? दिखाया। He showed him his works. क्या हम परमेश्वर का काम ही देखते रहना चाहते हैं, Do we also just want to see only God's works? क्या उसके वेश को लर्न करना चाहते हैं? Or do you want to learn God's ways? तो दो तरह का चीज है। So there are two different things. कुछ लोग परमेश्वर के पास आते हैं, So some people who come to कुछ God चाहिए परमेश्वर से, because they want something from God. चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस, They want healing or deliverance from God. ब्लेसिंग। Blessing from God. किसको बच्चा नहीं होता, बच्चा चाहिए। If they don't have children, they want children. इजरायली परमेश्वर के पीछे आ रहे थे, The people of Israel were following God. टाइम टाइम पे कंप्लेंट करते रहते थे, But from time and again they were grumbling हमको खाना नहीं मिल रहा, that we didn't get food, हमको नॉनवेज नहीं मिल रहा, that we didn't get meat, हमको पानी नहीं मिल रहा। that we didn't get water. मूसा ने कंप्लेंट नहीं किया। But Moses never हम complained. देखते मूसा कभी कंप्लेंट नहीं किया। Moses never complained. वो बोलते तुम लोग कैसे ऐसे कर सकते हो? And Moses was telling people in Israel, ये how याद are करो you? उसने कैसे तुमको इजरायलियों से फिरौन के बंधनों से छुड़ा कर लाया है। He was saying, remember how God delivered you from the hand of Pharaoh. कितने अद्भुत काम उसने तुमको दिखाया है। He showed you all his wonders. अभी क्यों परख रहे हो परमेश्वर को? But why are you grumbling now? क्योंकि मूसा को ये सब नहीं चाहिए था, Because Moses didn't want all मूसा these को कुछ things. और चाहिए था। Moses wanted something आपको else. पता है मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? And you know what Moses asked God? एक बार मुझे आपको देखना है He प्रभु। said, God, I want to see your face एक once. बार। Just once. परमेश्वर ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं, God told him, this is not possible. अगर तू मुझे देखा तो मर जाएगा। He said, if you see me, you will वो not, बोलता you will नहीं, फिर भी die. प्रभु मुझे आपको एक बार जरूर देखना है। But Moses said, no, God, I want to see you once. क्या हमारे अंदर ऐसी चाहत है? Is that desire there in us? इजरायलियों ने कभी नहीं कहा, The people of Israel never asked कभी that. नहीं कहा। They never asked that. चमत्कार बहुत देखा उन लोगों ने, They didn't ask to see God's face even उन once. लोग ने चमत्कार बहुत देखा, They had seen many of God's इतने wonders. सारे चमत्कार जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। So many wonders that we can't even imagine. लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं और उसकी और देखूं ये कैसा अद्भुत परमेश्वर है। But they never desired that I want to come to God and see लेकिन who is this God. मूसा के अंदर ये डिजायर था, But Moses had that desire. मूसा को और चमत्कार नहीं देखना था, Moses didn't want to see any more ऑलरेडी बहुत wonders. देखा He चमत्कार, had seen so many wonders. अभी उसको कुछ अलग चाहिए था। He wanted something more. परमेश्वर मुझे आपको ही देखना है। He said, God, I want to see you. परमेश्वर ने बोला ठीक है। Then God said, okay. परमेश्वर ने बोला मैं अभी तेरे सामने से जाऊंगा, God said, I will pass before you. तू एक पहाड़ के पीछे छुपना, I'll hide you in the वहां cleft पर of the एक rock. छोटा होल है, There's a small cleft in that. और मैं जब जाऊंगा तू वहां से देख लेना मेरी महिमा को। He said, when I pass, you will see me from there. और परमेश्वर उसके सामने से गया, And God passed before और him. उस छेद में से मूसा ने परमेश्वर को देख लिया। And through that cleft of the rock, he saw God. देखो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, See, nobody can see God. लेकिन मूसा के अंदर डिजायर था, लॉर्ड मुझे आपको देखना है, But Moses had the desire that God, I want to see you. चाहे मैं मर भी जाऊं, He said, even if I die. क्योंकि परमेश्वर को देखना मृत्यु, जैसे हम परमेश्वर को देखेंगे मर जाएंगे बाइबल कहता है, Because no man can see God and live. लेकिन उसको परवाह नहीं था, But he was not bothered वो about तो मुझे that. फिर भी देखना है। He said, still I want to उस see you. छेद में से उसने परमेश्वर को So देखा। through that cleft of the rock, he आज saw हम God. परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? And now how can we see God? यीशु मसीह के द्वारा। Through Jesus. We जब can हम see. यीशु मसीह को देखेंगे
When we see Jesus, तो उसमें हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। then we can see the glory of God. हमने सुना धन्य है जो आत्मा में दीन है। And that's why blessed are those who are poor in spirit. पुअर मतलब क्या होता है? What does it mean to be poor? पुअर मतलब कौन है? Who is poor? जो हर समय दूसरे पे डिपेंडेंट है। Who is always dependent on someone else. हमको पुअर नहीं बोलेंगे, Nobody will call us क्योंकि poor हम अपना कमाते और अपना खाते हैं। because we are earning and we are eating. पुअर उसको बोलते हैं जो खुद कमा भी नहीं सकता, हाथ पैर कटे है, ऐसी रास्ते पे खड़ा बेटा है। Poor is a person who may not be having his limbs and not able to work, and he's sitting on the side वो of the हमेशा road. दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, वो आके मुझे क्या देगा? And he is always dependent on other people that who will come and give me something. भाई मुझे कुछ दे दो, Please give me something. प्लीज दे दो। Please give me. और हम दया करके उसके ऊपर दे देते हैं। And we pity him and we give them आपको something. पता है भजन संहिता 123 में क्या लिखा है? And you know what does it say in Psalms 123? भजन संहिता 123 Psalm 123, और उसका दूसरा वचन में हम देखते हैं, verse 2. देखो जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, As the eyes of a servant look to the hand of the master, and the eyes of a maid to the hand of her mistress, अब आगे क्या कहते हैं? वैसे हमारी आंखें so our eyes, कहाँ लगी रहेगी? where मनुष्य की ओर नहीं। are our eyes looking? Not towards बहुत men. सारे भाई बहन लोग अपना आंख मनुष्य की ओर लगाते हैं। Many brothers and sisters are keeping their eyes on people, on अरे men. ये भाई बहुत अमीर है, ये मेरे को थोड़ा हेल्प करेगा। And this brother is very rich, maybe he'll help me. लेकिन यहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर की ओर आंख लगाते हैं। But here it says that the eyes look to the Lord our God. और हमारा परमेश्वर यहोवा, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। So our eyes look to the Lord our God until He has mercy on us. कब तक हमें परमेश्वर की ओर देखते रहना है? Till when do we have to look towards God? सोचो एक भिखारी भीख मांग रहा है, Suppose that there's a beggar उसको begging. खाना नहीं मिला, उठ के चले जाएगा क्या आधे एक घंटे के बाद? If he doesn't get food even for half an hour, Wait will he get करेगा। up? Will he get up and go? क्योंकि No. अगर वो चले गया वो भूखा रह जाएगा। He will wait. If he goes away, he'll be वो hungry. मांगते रहेगा जब तक उसको नहीं मिलेगा। He will keep on begging till he gets. वैसा ही वो कहता है, जब तक प्रभु मेरे पे अनुग्रह नहीं करेगा मैं उसकी ओर देखते रहूंगा। Here it says, until He has mercy, our eyes look to the Lord our So God. brothers and sisters, हमारे लिए भी एक उदाहरण है। So this is an example for you. हर and दिन me. प्रभु के सामने मांगते रहो, Let's also stand before God and keep on प्रभु मुझ begging. पर दया कर, God have mercy on मुझ पर us. करुणा कर, Show us your grace. मुझे आपका काम नहीं देखना प्रभु, मुझे आपका वेश को देखना है। God, I don't want to see your works. I want to see your ways. मैंने आपके काम बहुत देखे अपने जीवन में, I've seen your wonders so many in my life, लेकिन अभी मुझे आपका वेश देखना है। but now I want to see your मुझे ways. और यीशु जैसा बनना है। I want to be more like मेरे अंदर Jesus. के गलती मुझ पे प्रकट कर Show me the और wrongdoings in my life. और मुझे अनुग्रह दे कि आत्मा के द्वारा मैं हर एक चीज को जयवंत रीति से जी सकूं मैं। Give me the grace that through the Spirit I may live a victorious life. क्या आपको नहीं लगता परमेश्वर हमको देना चाहता है? Don't you think that God wants to give us this? आपको क्या लगता है परमेश्वर हमको ऐसा जीवन देना चाहता है, नहीं देना चाहता? What do you think? Does God want to give us this type of life or not? पर यीशु मसीह कहते हैं And Jesus says, तुम पापी होकर you being wicked, अपने बच्चों को अच्छा चीज देना चाहते हो, you know what to give to your children. तुम्हारा परमेश्वर पिता Then your heavenly Father, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? then why won't your heavenly Father give the Holy Spirit to हर those एक who ask? व्यक्ति को मिलेगा, Everyone will get it. जो कोई मांगेगा। Whoever is asking. लेकिन क्या हम मांगना चाहते हैं? But do we want to क्या हम ask? टायर्ड हो गए मांग मांग के? Or have we become tired of asking? परमेश्वर हम सबको देखता रहता है, God is looking at each one of us. हमारे एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर। Not even one of our tear will go waste. प्रकाशित वाक्य में लिखा है तुम्हारे हर एक आंसू मैंने अपने कुप्पी पे बंद करके रखा है। God says, I've stored each of your tears in a bottle. हर एक आंसू जो हम बहा रहे वो ऐसी वेस्ट नहीं जा रहा है। All our tears is not going to go waste. It's अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, किसी के लिए भी आप आंसू बहा रहे, खुद के लाइफ के लिए, वो हर एक आंसू हिसाब में है। all the tears that we have shed for our children, for our husband, God has kept into account of each of those और tears. उत्तम समय में परमेश्वर उसका उत्तर आपके जीवन में देगा। And at the correct time, God will give you the answer in आज your आप life. अपने जीवन में रो, प्रभु हमारे जीवन को ऐसा बदलो। Now today, it's the time for us to cry before God. God, change our आने lives. वाले दिनों में हम देखेंगे हमारे जीवन में कैसे प्रभु परिवर्तन लेकर आता है। And in the coming days, we'll see how God is going to transform our तो lives. जिस तरह एक बेगर वेट करता रहता है, वी हैव टू वेट। Just like a beggar is waiting, we also have to wait. आपको पता है यीशु मसीह ने एक बार एक स्त्री से कहा, You know what? Jesus said to the one woman, मैं
पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने नहीं डालता। Why should we throw the bread of children towards dogs? तो उस स्त्री ने कहा ठीक है, मैं कुत्ता ही सही, वो गिरा हुआ चूरा चारा तो मैं खा लूंगी। And the woman said, even the puppies gather up the crumbs that fall from the table. यीशु ने कहा बड़ा है तेरा विश्वास। And Jesus said to that woman, great is your faith. यीशु के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर। Nobody will go empty-handed from एक Jesus. चूरा भी हमें ब्लेस करेगा। Even the crumbs will be a blessing for us. तो परमेश्वर के पास हम विश्वास से जाए, Let's come to God with faith, आशा रखते रहे, with hope. हर दिन उसके पास जाए, Let us come to Him every day. हर दिन उससे कहे प्रभु अनुग्रह कर मुझ पर, Let us ask every day, God, अपनी have करुणा mercy. मुझ पर दिखा। Show me your mercy. तो बाइबल कहती परमेश्वर हम पर दया करेगा, And God's word says God will have mercy on क्योंकि वो us. दया करने वाला परमेश्वर है। Because He's a merciful God. हम में से एक जन भी खाली हाथ नहीं जाएगा। Not even one of us will go जितने empty-handed. लोग उसको पुकारेंगे। Whoever calls upon God, और एक अद्भुत वचन है भजन संहिता 90 and there's an amazing 91 verse, सॉरी 90 या 90 I think. Psalm 90, 91 Psalm 91 भजन संहिता 91। 91, जब भी तू मुझको पुकारेगा that whenever you call upon me, मैं तुम्हारी सुनूंगा। I will answer you. Whenever we call out, कभी Whenever- भी Anytime. हम उसको पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। Whenever you call upon Him, God is going to तो answer प्रभु हम us. सबको आशीष दे May God bless each one of और us. उसके राह पर चलने के लिए हमें सहायता प्रदान करे। May God give us grace to walk in His ways. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर का कि आज ये समय मिला, मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी बात कुछ रख सकूँ आप लोगों के सामने। दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा बोला कि आत्मा में गरीब कौन होता है, किस तरह से। एक और एग्जाम्पल मुझे आत्मा में गरीब होने का मैं बैठा सोच रहा था तो मुझे मिला। I want to give an example also about who is poor in spirit. वो है एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। The thief who was crucified along with Jesus. हम सब जानते हैं दो व्यक्ति थे, दोनों डाकू थे, एक दाहिने पर था एक बाएं की तरफ था। We all know that Jesus was crucified along with two thieves, one on the left and one on the right. एक ने यीशु मसीह को कंडेम किया, One of the thieves was condemning Jesus. लेकिन दूसरे ने उल्टा किया। दूसरे ने बोला हम तो अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। The other thief, he repented and he said, see, we are getting the rightful punishment for what we have done, but he is a holy man. लेकिन आज मैं कंपैरिजन इन दोनों डाकुओं के बीच में नहीं करूँगा, But मैं now- एक और व्यक्ति के साथ करना चाहूँगा। I don't want to compare between these two thieves. I want to compare with someone else, another person. और जो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इस डाकू का, वो था यहूदा इस्करियोती। The person with whom I want to compare this thief is Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो वो एक तरह से खजांची या अकाउंटेंट जिसको हम बोलते हैं वो था। Judas Iscariot in the Bible has been described like an accountant. उसके पास उस ग्रुप का जो यीशु मसीह के साथ था उसका पैसा वगैरह सब कुछ रहता था। He used to be the money keeper of that group of Jesus and his disciples. और उसने 3 साल तक हर एक बात परमेश्वर यीशु मसीह की देखी समझी, हर एक शिक्षा उसने यीशु मसीह से ली। For 3 years, Judas Iscariot had seen and observed Jesus in the way he works. लेकिन दूसरी तरफ वो डाकू के बारे में अगर हम पढ़ें But तो on the other hand, if we see the thief, तो वो सिर्फ उसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि वो एक डाकू था। about the thief, only one thing has been mentioned, that he was a thief. और हम ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह से वो इससे पहले कभी मिला था कि नहीं। And we don't even know that prior to this whether he ever had any encounter with Jesus or not. लेकिन जिस वक्त उन दोनों की मुलाकात हुई, But at that time when they were both met, हम उस सीन को थोड़ा सा इमेजिन करना चाहेंगे। let us imagine a little bit about that scene. ओके, यीशु मसीह यहाँ पर क्रूज पर टंगे हुए हैं Here Jesus is crucified on the cross, और उसी तरह से वो डाकू भी उसी स्थिति में है, कीलें लगी हुई हैं हाथों और पैरों पर, बुरी हालत है दोनों की भी। and the thief also has been crucified on the cross. His hands and legs are nailed, just like Jesus was nailed and crucified to the cross. और ऐसी सिचुएशन में वो डाकू बोलता है, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। In that situation, this thief tells to Jesus, Lord, remember me when you enter into your kingdom. कौन से राज्य की बात कर रहा था वो? What was this kingdom that this thief was talking about? कीलें लगी हुई हैं उन दोनों के हाथों में, Here- वो भी जानता था
कि अभी कुछ समय में, कुछ घंटों में ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा. What was his kingdom? He can see that Jesus has been crucified to the cross, and in a few hours that this Jesus also will die, and even I will die. तो कौन से राज्य की बात कर रहा था? वो वहाँ पर लटकते हुए उस राज्य के बारे में समझ चुका था जो यीशु मसीह जिस बारे में प्रचार करते रहे थे. Hanging on the cross, he who was about to die, he understood the kingdom that Jesus belonged to, and the kingdom which Jesus had been talking about this past 3 years. लेकिन यहूदा इस्करियोती 3 साल उनके साथ रहते हुए भी उस बात को नहीं समझ पाया. But Judas Iscariot, being with Jesus for 3 years, never understood this kingdom. आज हमारी भी वही हालत है. हम यीशु मसीह के पीछे चलते तो हैं, Even today, our situation is the same. We are also following Jesus. वचन भी पढ़ते हैं, We also read the word. लेकिन शायद हम उस राज्य को नहीं समझ पाते जो यीशु मसीह हमको देने के लिए आया था. But we are not able to understand the kingdom that Jesus came to give it to us. आज हमें ज़रूरत है कि हम उस बात को समझें और यीशु मसीह के पीछे फिर ठीक उसी तरह से ही चले जैसा कि उस डाकू ने अपने अंतिम समय में किया. So it is time for us that we also follow Jesus and desire that kingdom, just as a thief desired the kingdom when he was about to die on the cross. अगर हम दोनों के विषय में यीशु मसीह का कथन या उनका स्टेटमेंट पढ़ें तो डाकू के लिए उन्होंने कहा मत्ती 26:24 में, अच्छा होता कि अगर वो व्यक्ति पैदा ना हुआ होता. About both these things, both these persons, what Jesus says is important. About Judas, Jesus said that it would have been better had he not been born. सॉरी, ये कथन जो है वो यहूदा इस्करियोती के लिए कहा गया था यीशु मसीह का. और डाकू के लिए उन्होंने क्या कहा? And about the thief, what did Jesus say? कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. He said, today you will be with me in paradise. तो चॉइस हमारी, हम किस तरह से परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं. So the choice is ours that how we want to follow Jesus. Whenever I used to lead the lesson of the chapter of Matthew, for chapter 5 verse 3, it used to say that blessed are the pure in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. मैं जब भी ये वचन पढ़ता था जो कि मत्ती के 5वें अध्याय के 3रे वचन में है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. I used to think that they are all just humble people. मैं ऐसा सोचा करता था कि ये सारे जो लोग हैं वो नम्र लोग होंगे. But you know, in verse 5 it writes as blessed the meek, for they will inherit the earth. परंतु वाक्य 5 में इस तरह लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. So what I felt now is that being meek is just 2 steps before being poor in spirit. तो अभी मुझे ये एहसास हुआ कि नम्र बनना जो है वो दीन बन के उसके 2 कदम आगे होता है. See, first, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. पहला ये है कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. What do you mean by poor in spirit? Means you cannot take care of yourself, you surrender your life to Jesus. और मन के दीन होने का अर्थ ये होता है कि हम अपना ख्याल नहीं रख सकते अपने आप से, हम अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पित कर देते हैं. And we are cleansed by the blood of Jesus. और हम जो है प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए जाते हैं. Then comes verse 4. फिर आता है वाक्य 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. Now this is the second stage where we are fighting sin, we are battling sin, but we always fall short, we always fall into the same sin or many sins again and again, and we mourn over it with deep repentance. और यहाँ पे ऐसा होता है, ये एक कदम आगे है जहाँ पे हम पाप से लड़ते रहते पर हम कहीं गिर जाते हैं, फिर हमारे पाप के विषय को सोचकर हम शोक मनाने लगते हैं. ये दूसरा कदम है. And the final thing, and this is not the final, but for today, blessed are the meek, for they will inherit the earth. और फिर अगली बात ये है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. So you see, when we are poor in spirit, we come to the Lord. When we mourn over our sins, the Holy Spirit comforts us. And when we humble ourselves, when we become humble, God gives us this promise that no,
we will inherit the earth. हमें पूरा जहां मिलेगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मन में दीन होते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारा होता है, और जब हम शोक करते हैं अपने पाप के विषय में तो हमें परमेश्वर शांति देते हैं, और जैसे हम परमेश्वर के सामने नम्र होके आते हैं तो परमेश्वर हमें ये वायदा देते हैं कि वो हमें पृथ्वी के अधिकारी बनाएंगे. So it's like, Lord, what does poor in spirit mean? It means, Lord, I can't do anything today without your grace. और मन में दीन होने का आत्मा में दीन होने का अर्थ ये क्या होता है कि प्रभु आपके बिना आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता. Even if I have overcome a sin and I'm walking in victory over it, let's see for 1 month, 2 months. But even if then I do not get God's grace, I can fall badly into it. इसका मतलब ये हुआ कि भले ही मैंने कुछ पापों के ऊपर जय पाई है और मैं एक विजयी जीवन जी रहा हूँ 1-2 महीने से, फिर भी अगर परमेश्वर का अनुग्रह मुझे नहीं मिलता है तो मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से चल नहीं पाऊंगा, मैं वापस से पाप में गिर सकता हूँ. Hence, this is the word which comes in the beginning. Blessed the poor in spirit. इसलिए ये वाक्य ऐसा आता है कि मन धन्य है वे जो मन के दीन है. Like, every day when we get up, I want this in my life to be true also, that whenever I get up, I say, Lord, help me today. Forgive me for my sins yesterday. Forgive me for my sins if I've sinned in my dream in any way. And please forgive me for my sins for today and give me grace. Fill me with your spirit to mourn for your sins and be meek. यही मैं प्रतिदिन करता हूँ. जब भोर को उठता हूँ तो प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मैंने जो भी गलतियाँ की है, मैंने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे मेरे हर एक पापों से क्षमा कर दीजिए जो मैं कर सकता हूँ, और मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपना अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके सामर्थ के साथ इस दिन को जी सकूँ, मुझे सहायता दीजिए. Thank you. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. We were listening about condemnation. और मैं जिस बात के बारे में बात करने वाला जो विषय है वो है दोष. See, one of the greatest trick of the Satan is to make us condemn ourselves. तो सबसे बड़ी शैतान की चालाकी यही होती है कि वो चाहता है कि हम अपने आप पर दोष लगाते रहें. He says you cannot do it, you are not able, you cannot lead a successful Christian life. वो हमसे ये कहता रहता है कि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम एक सफल मसीही जीवन नहीं जी सकते हो. Because the Satan is an accuser. That's what we read in Revelation. और क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो दोष लगाते रहता है. He is always in the job of work of condemning us, और accusing us. वो उसका हमेशा यही काम होता है कि वो हमारे ऊपर दोष लगाते रहें, हमें दंड की आज्ञा के नीचे आने के लिए मजबूर करते रहें. But why? Because we don't trust in the word of God. ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए. But the word of God says, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है in Romans chapter 8 verse 1, रोमियो 8वां अध्याय उसके पहले वचन में, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. That is, there is, the word of God says there is no condemnation परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दंड की आज्ञा के नीचे नहीं हैं to them that are in Christ Jesus. जो कि प्रभु यीशु मसीह में हैं. If we have got the confidence अगर हमारे अंदर ये आत्मविश्वास है I am in Christ कि मैं यीशु में हूँ and Christ is in me, और मसीह मेरे अंदर है, then the word says there is no condemnation for us. फिर वचन हमसे कहता है कि तो हम दंड की आज्ञा में नहीं हैं. But there is one more condition there. पर यहाँ पे एक और शर्त है, But those who don't walk in the flesh, परंतु जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, jada, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, don't walk according. If you are not walking according to flesh, अगर आप शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, that there is no condemnation.
और तो वहाँ पे दंड की आज्ञा नहीं है। You can trust in the Lord. आप प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। You can call yourself a believer. आप अपने आप को विश्वासी कहला सकते हैं। But that don't expect that you will not be condemned. You will not be under condemnation. पर आप इस बात की आशा मत रखना कि आपके पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा, आप दंड की आज्ञा में नहीं हैं। But there is another condition. पर यहाँ पे एक और शर्त लिखा That you गया will है not be under condemnation. ताकि आप उस दंड की आज्ञा में ना आए। That is that you should not walk according to the flesh. वो ये है कि आप शरीर के अनुसार ना चलो। We claim that we are in Christ. हम ऐसा दावा करते हैं कि हम मसीह में हैं। And if we walk according to the desire of our flesh, अगर हम अपने शरीर के लालसाओं के अनुसार चलते हैं, according to the world around us, या तो फिर दुनिया के अनुसार जो हमारे आसपास है उसके अनुसार चलते हैं, then that condemnation will be upon us. फिर वो जो दंड की आज्ञा See है वो हमारे ऊपर होगी। See, the word of God says in Psalm 103. परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 103 में, Let us read verse. We read that bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. which verse? सेकंड दूसरा वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। Then verse 3 says, और तीसरा वचन कहता है, who forgiveth all things iniquities, all thine iniquities, who healeth all thy diseases. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। He says, bless the Lord. कहा गया है धन्य हो प्रभु का। क्यों? Why? क्यों? Not because of the blessings we materially we receive. इसके लिए नहीं कि हम जो परमेश्वर से आशीष जो हमेशा पाते रहते उसके कारण नहीं, But because who forgiveth all thine iniquities. पर इसीलिए कि वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। इसीलिए We have got a God who forgives our iniquities. हमारे पास ऐसा एक परमेश्वर है जो we हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। We should live giving thanks to Him because He has forgiven us our sins. और हमें उसका धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। All that things which were against us, जो भी चीजें जो हमारे विरोध में थी, that what commandments that was against us, He has nailed it on the cross. और जितनी भी आज्ञा जो हमारे विरोध में थी वो सारी आज्ञा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो है क्रूस पे चढ़ा दिया And है। made us victorious in Christian life. और इस मसीही जीवन में हमें जयवंत बनाया है। We have to believe the word of God. हमें परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करना है। If we don't believe the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर then देंगे it will not benefit us. तो फिर इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। We can hear whatever is being preached here. यहाँ पे जो भी समाचार हमें सुनाए जाते हैं वो हम सुन तो सकते हैं, We can say it's good message. और हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा संदेश है, We can be outwardly happy. और बाहरी रूप से हम खुश भी हो सकते हैं उससे, But we have to believe it. परंतु हमें उस पर विश्वास करना होगा, That only it will benefit us. तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। That is what we read in Hebrews 3. वही हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब उसके We तीसरे say अध्याय in में। the last verse of Hebrews 3, we read that it don't benefit those Israelites. और हम तीसरे वचन इब्रानी तीसरे के आखिरी वचन में पढ़ते हैं कि Because इस्राएलियों के they- लाभदायक इसलिए हुआ Because they did not believe. क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। So this is what is going to happen. यही होने वाला है, इसलिए We can attend the meetings. हम इस सभा में भाग तो ले We can सकते listen हैं, to the messages. हम बहुत सारे संदेशों को सुन सकते हैं, But we have to believe it. परंतु हमें उस बात पर विश्वास करना And होगा that- take it that this word is from God for me. और हमें उस वचन को इस तरह लेना होगा कि ये जो वचन है वो परमेश्वर के द्वारा मेरी ओर आई है। That only we will not be under condemnation. तभी हम इस दंड के आज्ञा के अधीन में नहीं होंगे। So what we hear, we have to
accept it and take it as the word of God. और जो भी हम यहाँ सुनते हैं उसे परमेश्वर के वचन के रूप में हम अपने अपने हृदय में ग्रहण करना है That God is speaking to me. कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं. So we see that there is another verse in the same Psalm 103. हम देखते हैं एक और वचन जो कि भजन संगीता 103 में है. He made verse 7. 7वां वचन. He made known his ways unto Moses, और उसने मूसा को अपनी गति and his acts unto the children of Israel. और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए. See, you know what has happened, that Moses was faithful to God in all his ways because God made him made his ways to be known to him. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ. मूसा जो है परमेश्वर के सामने उसके सारे मार्गों में विश्वास योग्य बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर की सारी गतियां बताई. We have to know the way of the Lord. हमें प्रभु की इस गति को जानना बहुत जरूरी That's है. what God says, my ways are not your ways. इसीलिए ही परमेश्वर कहते हैं कि My मेरे जो मार्ग thoughts are तुम्हारे not- मार्ग जैसे नहीं है. My thoughts are not your thoughts. मेरे जो सोच है वो तुम्हारी सोच नहीं है. We can live according to our thoughts and our understanding. हम जो है हमारे सोच और हमारे बुद्धि के अनुसार जी सकते हैं, But to lead a successful life, परंतु एक सफल जीवन जीने a के लिए victorious Christian life, और एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए we have to know the way of the Lord. हमें प्रभु के उस मार्ग को जानना बहुत जरूरी What है. is God's plan in my life? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? What God wants me to do, परमेश्वर मुझसे क्या करना चाहते हैं? so that we will be people who will please Him. तभी हम ऐसे लोग होंगे जहाँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे. Another thing is that और दूसरी बात ये है, we can condemn ourselves हम अपने आप पर दोष लगाएंगे, not by others. दूसरों के द्वारा नहीं. We can condemn ourselves हम अपने आप को ही दोष लगाते रहेंगे, by judging others. दूसरों पर दोष लगाते या उनका न्याय करते हुए, That we read in chapter 2 of Romans verse 1. जो कि हम पढ़ते हैं रोमियो के अध्याय 2 अध्याय के पहले वचन में. Just read it. Yes, brother. सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है. That is, therefore, inexcusable, O man, whoever thou art, that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. और जो तू दोष लगाने वाला, तो कोई क्यों ना हो, तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है. When we judge others, जब हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते when we हैं, accuse others, हम दूसरों को when we find fault with others, जब हम दूसरों की कमियां निकालते हैं, and the word of God says that we are condemning ourselves. तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपने आप पर ही अपने आप को दोषी ठहराते हैं. So we have to see, it is something like a boomerang. Boomerang is something you throw, there is a kind of thing which you throw, it will turn back and come back to us. और ये जो है इस एक चीज के समान है जो कि बॉल के एक गोले के जैसा होता है, जिसे हम अगर दूर फेंकते हैं वो घूम घूम के हमारे पास ही वापस आ जाता है. So when we judge others, और जब हम दूसरों का न्याय करते it is हैं, just like a boomerang which will come against us. वो उस बूमरैंग की तरह वैसे ही होता है जो कि हमारे पास वापस आ जाता है. It will bring condemnation to ourselves. वो हमारे ऊपर ही दंड को लाने जैसा है. Somebody says when you point a finger to someone else, किसी ने ऐसा कहा है कि अगर तुम एक उंगली he दूसरों की says तरफ उठाते हो one finger is towards the one you are pointing, और एक जो आपकी उंगली है वो दूसरे के ऊपर जिसके ऊपर आप but दिखा there रहे are हैं उसके ऊपर other है, 3 fingers pointing at you. परंतु बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी तरफ होती हैं. See, when we condemn others, देखिए, जब हम दूसरों पर दोष when we लगाते हैं, accuse others, जब दूसरों के ऊपर दोष लगाते it will हैं, come back to us
it will become a condemnation for us. तो वो हमारे पास लौट के आता है, वो हमें दोषी ठहराता है। So we have to listen to the word of God, accept it and believe it as word of God and bring it तो into हमें practice. परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना है और अपने जीवन में जो है इसे अभ्यास के रूप में करना भी है। When God showed the ways to Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति दिखाए but the people of Israel saw the miracles only. और इज़राइल के जो लोग थे उन्हें परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए And by seeing the miracle, और उन चमत्कारों को देखकर did not increase their faith. और उनका जो विश्वास है वो बढ़ा नहीं They became people who are murmuring. और वो ऐसे लोग बन गए जो कि कुड़कुड़ाते हों। It is not the miracle and wonders we see in life ये इससे नहीं होता कि जो भी चिन्ह चमत्कार हम अपने जीवन में देखते हैं that will make us strong in faith. ये हमें विश्वास में मजबूत बनाता हो। It is the ways that go, the word of the God, the way of the God. See, परमेश्वर that's what he says, I have the word, the truth and the life. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मार्ग जो है, परमेश्वर ही सत्य है, जीवन है, मार्ग, यही हमें परमेश्वर में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। So Jesus is word itself. परमेश्वर यीशु मसीह खुद ही वचन है। So we believe whatever we hear and walk in the ways of the Lord. अगर जो कुछ भी हमसे कहा जाता है परमेश्वर के जो मार्ग है वो हम विश्वास करें Then there will be no condemnation. तो फिर वहाँ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। Thank you all. सबको धन्यवाद हो परमेश्वर की स्तुति। एशिया का किताब 53 वर्स 9। कंडेमनेशन के ऊपर जब हम ध्यान कर रहे थे, पढ़ सकते हैं 53:9। हाँ, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग भराई गई और मृत्यु के समय वह धनवानों का संगी हुआ। तथापि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। तो ये यीशु के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे मुझे जब भी ये वचन पढ़ती हूँ और पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा था कंडेमनेशन के बारे में, जब भी हम कंडेमनेशन करते हैं हमको यहाँ देखना चाहिए। परमेश्वर कहता है यदि तुम कंडेमनेशन से छुटकारा पा लिया, अपने आप को जजमेंट या अपने आप को निराश करने से छुटकारा पा लिया, वो जगह में पा लिया, तो परमेश्वर हमारे ऊपर ये यहाँ कई आशीष है। दुख है बट ये आशीष में मैं बोल सकती हूँ क्योंकि 53:7 से लिखा है। एक बार पढ़ सकते हैं ब्रदर? वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपने मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ। और भेड़िया खून कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गया और उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान न दिया कि वह जीवतों के बीच में से कैसे उठा लिया गया। बस आगे जब पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये एक आशीष है। जब हम उन सारी बातों से छुटकारा पाते हैं, हमारे अंदर वो सहनता, वो नम्रता जो यीशु ने दिखाया है, तो वो आने लगेगा। जब वो आता है ना, जब लोग हमारे बारे में बातें करेंगे तो हमारा मुंह जैसा यीशु ने रखा है उसी तरीक़े से हम भी इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।